A very good morning. You're watching NewsX and I'm Shivani Singh. Let's look at the top story that's coming in from Madhya Pradesh. In a tragic incident in Chhindwara, Madhya Pradesh, 11 children have died after consuming cold reef cough syrup. According to SP Nagpur, Maharashtra, Ajay Pandey, a case has been registered under 105 BNS, 276 BNS and 27A Drug and Cosmetic Act. Dr. Praveen Soni, who treated the majority of the affected children and had prescribed cold reef, has been named as an accused in the case. The manufacturing company, Shri Shan Pharmaceuticals of Tamil Nadu, is also a prime accused. The doctor is currently in police custody as the investigation into this devastating incident continues. Let's listen in. जी, जैसा कि आपको विदित होगा कि कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा के परासिया सब डिवीज़न में बच्चों की असामयिक मौत का एक कुछ घटनाएं सामने आई थी, जिसमें कि इनिशियली बच्चों को खांसी सर्दी बुखार की शिकायत होती थी और फाइनली किडनी पे उसका असर होता था और वो रीनल फेलियर की तरफ चले जाते थे, उससे उनकी डेथ हुई है। इस संबंध में जो बच्चों को जो ट्रीटमेंट हुए हैं और जिन डॉक्टरों के द्वारा उनका इलाज किया गया है, उनकी एक जांच जो है की गई थी। My colleague Chetan Sheth is joining us live on the broadcast right now. But before that, we have some breaking inputs coming in. In fact, authorities in Madhya Pradesh have reportedly arrested a doctor in Chhindwara district after 11 children died from consuming contaminated cough syrup. The doctor has been identified as Praveen Soni. He is alleged to have prescribed the cold syrup to several children, most of whom were treated at his clinic in Parasia. Police have also registered a case against the Tamil Nadu-based pharmaceutical company that manufactured the syrup over the suspected contamination. Madhya Pradesh police registered an FIR early Sunday at Parasia police station in Chhindwara district against Shri Shan Pharmaceuticals. This is the Tamil Nadu-based manufacturer and a local pediatrician. The complaint stated that several children under the 5 years of age died after being given the cold syrup, which laboratory tests later found to have contained diethylene glycol, a poisonous chemical commonly used as antifreeze and brake fluids. Meanwhile, Chhindwara District Collector Shailendra Singh has cited biopsy reports indicating that kidney tissue analysis of the affected children suggested contamination on DEG in the cough syrup that they had consumed. All right, I'm going back to my colleague Chetan Sheth, who's joining us. Chetan, बहुत सारी अभी FIR एक फाइल हुई है और उसमें BNS के बहुत सारे सेक्शंस फाइल किए गए हैं और एक डॉक्टर भी अरेस्ट हुआ है। हमें थोड़ी और जानकारी दीजिए, क्या आप हमें बता सकते हैं इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर की गिरफ्तारी के साथ साथ जिस कंपनी के द्वारा सिरप छिंदवाड़ा में भेजी गई थी वो तमिलनाडु की कंपनी है, उस कंपनी पर भी FIR दर्ज कर ली गई है। देर रात FIR दर्ज हुई है। कल 1 बजे के लगभग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोल्ड ड्रिंक जो सिरप है उस पर पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगा दिया। राज्य सरकार ने 12 दवाइयां ली थी। 12 दवाइयों के सैंपल में से 3 दवाइयों के सैंपल जांच करने के लिए भेजे थे, जिसमें कोल्ड ड्रिंक सिरप जिसको बैन लगाया गया है उसमें 46.2% डायथिलिसिन ग्लाइकोल यानी कि एक ऐसा केमिकल जो इंडस्ट्रीज इस्तेमाल में होता है उसको मानव इस्तेमाल में किया गया, बच्चों के इस्तेमाल में किया गया। बच्चों के जो सिरप थी उसकी मिठास बढ़ाने के लिए इस केमिकल का उपयोग किया गया। इसके अलावा नेट्रोडीएस और मेफ्टापी जो सिरप ली गई थी उसकी रिपोर्ट ओके आई है। यानी कि कहा जाए कि जो कोल्ड ड्रिंक सिरप थी उसमें 46% केमिकल पाया गया जो मानव जीवन के लिए, खास तौर पर बच्चों के लिए बेहद हानिकारक है। केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें भी कहा गया था कि 2 से 5 साल तक के बच्चों के लिए ये बेहद खतरनाक हो सकते हैं तमाम प्रकार के केमिकल। वही राज्य सरकार की रिपोर्ट में अब सामने आई है। 11 बच्चों की मौत हुई है। 11 बच्चों की मौत होने के साथ साथ डॉक्टर और कंपनी पर भी FIR हो गई, डॉक्टर की गिरफ्तारी हो गई। हालांकि कंपनी के जो संचालक हैं वो अभी फरार हैं ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर कहा जाए कि जो सिरप आई छिंदवाड़ा में और तमाम प्रकार के मध्य प्रदेश में सेम फॉर्मूला के अनेक सिरप मिल रहे हैं।
राज्य सरकार ने एक राज्य स्तरीय कमेटी भी गठित की है। वो कमेटी सैंपलिंग लेगी और सैंपलिंग के आधार पर उनकी भी रिपोर्ट आने का इंतजार करेगी। लेकिन कहा जाए कि जिस तरह से जो केमिकल प्रयोग किया गया सिरप में, वो इंडस्ट्रीज इस्तेमाल में किया जाता है, लेकिन सिरप में कैसे आ गए, ये बड़े सवाल हैं। क्योंकि कई पैरामीटर पर इन सिरप्स की या कोई भी दवाई जब लॉन्च होती है, बाजारों में आती है आम मानव के लिए, तो उसकी तमाम प्रकार की जांचें होती हैं कि उसमें किसी तरह की खामियां तो नहीं जिससे मानव जीवन पर कोई प्रभाव या उन्हें नुकसान हो सके। ऐसे में बड़े सवाल हैं कि जो सिरप है किस तरीके से छिंदवाड़ा पहुंची। तब की तमिलनाडु सरकार ने पहले ही उस पर बैन लगा दिया था, अब मध्य प्रदेश सरकार ने बैन लगा दिया, असम सरकार ने बैन लगा दिया। 3 राज्य सरकारों के द्वारा इस सिरप पर बैन लगा दिया गया। लेकिन ये सिरप केवल छिंदवाड़ा में पहुंची, कैसे पहुंची, क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी मिले थे, क्या स्वास्थ्य विभाग के केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी मिले थे, तो तमाम सवाल हैं जो सवालों के घेरे में जो राज्य स्तरीय कमेटी गठित की गई है वो जल्दी इन सवालों का जांच करेगी। जांच के बाद कार्रवाई भी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बच्चों की मौत हुई, पहले 7 बच्चों की मौत हुई, फिर संख्या बढ़कर 9 हुई और अब संख्या बढ़कर 10 हुई। 10 के बाद आज सुबह की बात करें तो संख्या बढ़कर 11 हो गई। इसके अलावा 14 और बच्चे जिनके डॉक्टर प्रवीण के द्वारा जिन बच्चों को प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया था, उन्होंने इस सिरप का इस्तेमाल किया, उन्हें भी बच्चों को किडनी की समस्या आ रही, किडनी के साथ साथ यूरिन करने में भी उन्हें समस्या आई। और यही वजह, इन 11 बच्चों की मौत के पीछे भी यही वजह थी कि जब उन्होंने सिरप का इस्तेमाल किया तो सबसे पहले यूरिन की समस्या हुई और यूरिन के बाद उनकी किडनी फेल हुई, किडनी फेल होने के बाद बच्चों की मौत हुई। तो कहा जाए कि राज्य सरकार ने भी अब राज्य स्तरीय कमेटी गठित किया, वो कमेटी भी जल्दी इस पूरे मामले की जांच करेगी। जी चेतन, इनफैक्ट